this video we already studied in the first part, that is the in atomic structure we studied about the atom, structure of atom, what is proton, what is neutron, what is electron, that we already studied. We have studied the Thomson plum pudding model and the Dalton's atomic theory. As well as we studied about the Goldfarb experiment, Rutherford Goldfarb experiment. Now we are going to study about the isotopes. So what is isotopes? Can anyone tell me what is isotopes? Isotopes are the atoms which have same structural formula but different properties. Right. हाँ, the same atomic number but different mass number. तो mass number क्या होता है? Can anyone tell me? Right. तो same atomic number है, atomic number same, but different mass number. So what is mass number? Right. Proton plus neutron. Right? हाँ. That means उसके physical properties same रहेंगे और chemical properties अलग. Right. अगर if I say about the carbon, so carbon is having the C12, C13 and C14. Right? इसमें से सबसे ज्यादा abundant कौन मिलता है? C12. Then C13 and then C14. ठीक है? Then in that C14 is basically the little bit radioactive. C13 is not radioactive, but C12 is very normal. That we are getting in the in our bones also. Like when any human being dies, when any living organism dies, so they form the carbon. Understood? Okay. Right. Then in isotopes, like here, isotopes are useful for the other purposes. Like जैसे if I suppose these are the isotopes, right? Okay. Isotopes and allotropes are different. You are having this concept also. What is allotropes? What is allotropes? Can anyone tell me? Allotropes का मैं example बताती हूँ. Carbon, diamond, fullerene. Okay. ठीक है. So ये जो है allotropes, ये क्या होता है? जैसे कि carbon, diamond, both are mainly the what coal, diamond and the graphite. Right? You already know that. Diamond, graphite and fullerene. These are their main component is carbon only. जैसे डायमंड जो है उसका मेन कंपोनेंट क्या है? कार्बन है. कोल जो है उसका मेन कंपोनेंट क्या है? डायमंड है. ग्राफाइट जो उसका मेन कंपोनेंट क्या है? कोल है. हाँ, कार्बन है. राइट. एंड देन फ्लोरीन जो है C16 जिसको बोलते हैं, दैट C16 इज बेसिकली नोन एज फ्लोरीन एंड दैट इज हियर आल्सो द मेन कंपोनेंट इज कार्बन. मतलब डायमंड में भी कार्बन है, ग्राफाइट में भी कार्बन है और ये C16 जो है दैट इज फ्लोरीन, उसमें भी कार्बन है. ठीक है. बट इन सबके प्रॉपर्टीज अलग अलग है. इफ आई से डायमंड इज वेरी हार्डेस्ट पार्ट, बट इट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और बैड कंडक्टर? Bad. राइट. एंड व्हाट अबाउट हीट? Good. हाँ, राइट. सो इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एंड व्हाट अबाउट द ग्राफाइट? Good conductors of electricity and bad conductors of heat. राइट. समझे? और ये जो C16 है उसके जो एलिमेंट्स होते हैं, मतलब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऐसे इसमें लाइक एक बॉल शेप रहता है, उसमें ऐसा वो अटैच होता है. सो देयर इज नॉट इवन अ सिंगल गैप बिटवीन दैट. अंडरस्टूड? ओके. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आइसोटोप्स एंड allotropes. Allotropes are basically what? कि जहाँ पे their main component is same, but their properties, physical and chemical, both the properties are different. यहाँ पे isotopes में क्या है? They are having the same atomic number but different mass number. So now, okay. Now here, see what we will see. जैसे कि हाइड्रोजन है, ठीक है? जो ये फर्स्ट वाला हाइड्रोजन है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं है. न्यूट्रॉन नहीं है. सेकेंड वाला और थर्ड वाले में न्यूट्रॉन है, बट फर्स्ट वाले में न्यूट्रॉन नहीं है. बट दीज ऑल आर दी आइसोटॉप्स ऑफ ईच अदर. जैसे इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटियम. व्हाट वी कॉल? प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ये ट्रिटियम. समझे? So these are the three isotopes. Understood? And when we say about the water, it is the deuterium oxide. ठीक है? हाँ. Then now, right, H2O. Then here we are going to study about the electronic configuration. What is electronic configuration? The number of electrons in the outermost shell. Okay, that is valence. That is a valence electron. What is electronic configuration? Number of electrons present in an atom. Right. Diagrammatic representation. Right. The diagrammatic representation of the
atom. Right, diagrammatic representation of the atom. So here, now, this is the, okay, consider that this is a 6 carbon. What is the atomic number of carbon? 6. So they are having the 6 proton, 6 neutron. Okay. Here, the first shell, how many electrons will be there? 2. Right. In second shell, how many electrons will be there? 4. Right. So here, 4 electrons are there. Right. So how I write the electronic configuration? In a periodic table, we already learn about this. Okay, इसमें से S block, P block, D block कौन सा है मुझे बताओ? The post transition. So now here, see, ये वाला जो है, ये क्या है? S block. ये क्या है? T block. ये क्या है? D block और ये क्या है? A block. Right? तो इसका मतलब क्या हुआ? तो whatever the elements are there, so the last electron will always be the S block. So now, whatever the elements are here, they always be na, what it will be? They will be na D block. मतलब they will be na D shape. They will be na P shape and they will be na F shape. Okay. Now that's why they are given this block. Understood? Okay. So if I say about the okay, first मैं आपको बताती हूँ. ये जो first shell होता है उसका नेम होता है K और ये second shell होता है उसका नेम होता है L. फिर जो third होगा M N, इस तरीके से वो चलता है. और जो लास्ट शेल होता है उसको बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल. क्या बोलते हैं उसको? हाँ, लाइक द आउटर मोस्ट शेल. यहाँ पे इसका पेनल्टीमेट शेल कौन सा है? ये वाला. तो इस केस में L इज अ पेनल्टीमेट शेल. ठीक है, समझ में आया? अंडरस्टूड? ओके. तो शेल क्या है? शेल बेसिकली मैं आपको समझाती हूँ. इफ यू गो समवेयर अब्रॉड, ठीक है, someone will ask you from where are you, so what will you say? India, right? तो इंडिया मतलब ये पूरा एलिमेंट हो गया. Got it? Now you will say, अगर जिसको इंडिया के बारे में बहुत ज्यादा पता होगा वो पूछेगा इंडिया फ्रॉम वेयर, इन इंडिया वेयर एग्जैक्टली, सो यू विल से मुंबई. राइट? तो मुंबई ये हो गया, वो उसका पूरा शेल हो गया. समझा? मतलब जितने भी सारे शेल. हमारे मुंबई में एक ही जगह है क्या? नहीं, बहुत सारी जगह है. राइट? जैसे कि ठाणे है, वाशी है, नई मुंबई है, फिर बांद्रा है, देन साउथ मुंबई है. तो अब हाँ, अभी मैं बोलूंगी नई मुंबई, तो नई मुंबई क्या हो गया मेरा? नई मुंबई मेरा क्या हो गया? न्यूक्लियस, सेंटर पॉइंट. समझे? अगर मैं किसी को बोलती हूँ मुंबई, तो अगर उसको बोलना पता होगा तो क्या पूछेगा? नई मुंबई में कहाँ पे? तो यू से नई मुंबई. अभी उसको बहुत ज्यादा पता नहीं है, ठीक है, बट उसको ये पता है कि नई मुंबई एक एरिया है. गॉट इट? तो ये क्या हो गया आपका? न्यूक्लियस. मतलब नई मुंबई क्या हो गया आपका? न्यूक्लियस. फिर अभी जिसको ज्यादा और पता है वो आपको क्या पूछेगा? नई मुंबई में कहाँ पे? राइट? तो जैसे आपने बोला वाशी, तो वाशी एक सर्कल हो गया. वाशी इतनी सी जगह है क्या? क्या आप जाओ 4 लोगों को पूछ लो वे माय फ्रेंड इज स्टेइंग, कोई भी आपको बता देगा? पॉसिबल है कि ये? नहीं. तो वाशी एक रिंग हो गई, एक जोन हो गया, वो हो गया शेल. हाँ, अंडरस्टूड? तो उसमें से कोई एक आपका है. बड़े जरूरी है कि अगर मैंने सेक्टर 5 बोला या मैंने सेक्टर 9 बोला तो मैं सेक्टर 9 में एग्जैक्टली इसी जगह पे हूँ. क्या सेक्टर 9 सिर्फ इतना सा है क्या? नहीं है. बराबर? तो सेक्टर 9 में मतलब एक रेंज आ रही है. बराबर? तो ये जो रेंज है ये हो गया ऑर्बिट. समझा? ये हो गया ऑर्बिट. तो ये ऑर्बिट हो गया. अंडरस्टूड? और जहां पे मेरा एक एग्जैक्टली है वो हो गया मेरा घर, मतलब जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो गए. समझा? मतलब ये एक रेंज में मैं है. ठीक है? फिर जैसे वाशी के बारे में कोपर खेने, तो ये कोपर खेने दूसरा सही. समझा? अभी जैसे अपनी नई मुंबई का रेंज कहाँ पे? एरोली साइड का. राइट? तो एरोली जो है सबसे लास्ट वाला शेल है, तो क्या हो गया? पेनल्टीमेट शेल. समझ में? अंडरस्टूड? हाँ. तो ये इस तरीके से आपको ये करना. ऑर्बिट क्या है? एक पूरा जोन है, और शेल क्या है? उस स्पेसिफिक जगह. समझा? ये स्पेसिफिक लाइन. अंडरस्टूड? हाँ. अभी जैसे कोई अगर डीमार्ट से अगर निकल रहा है, तो अगर वो ये साइड से जा रहा है तो आपका एग्जैक्ट लोकेशन उसको पता चल रहा है. अंडरस्टूड? हाँ. तो वो हो गया उसका, वो हो गया ये. अगर वो पूरे सेक्टर 15 में आ रहा है तो ये सेक्टर 16 में आ रहा है, वो हो गया एक ऑर्बिट. समझा? फिर जहां पे एग्जैक्ट आपका घर है वो हो गया इलेक्ट्रॉन. गॉट इट एवरीवन? समझा? ओके. सो नाउ हियर, अभी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग कैसे लिखेंगे? ये जो से ये वाले ब्लॉक में जितने भी है उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन हमेशा एस ब्लॉक में आएगा. समझे? हमेशा एस शेल में आएगा. अभी देखो उसका एक फॉर्मूला है जो मैं आपको बताती हूँ.
नहीं, वो तो हम लोग इलेक्ट्रॉन फिल करें, बट हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? अभी जैसे इसका क्या है, 6 है एटॉमिक नंबर, तो ये देखो, ये हमेशा याद रखो कि फर्स्ट आएगा 1s, ठीक है? ये एक फॉर्मूला है जिसमें मैं आपको बताती हूँ, दैट इज नॉट इन योर बुक, मैं आपको आई विल टेल यू हाउ टू राइट, ठीक है? जैसे कि देखो, फर्स्ट एस, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 4p, 4d, 5s, 5p, 5d, 5f। हमारे पास ये का कोई ब्लॉक है क्या? हाँ, तो ये आएगा 6s, 6p, 6d, 6f, फिर ये आएगा 7s, 7p, 7d, 7f। ये ऐसे फिल होगा। हाँ, ये यहाँ पे 3d रह गया मेरा, हाँ 3d, ठीक है? 4D के बाद 4 है। हाँ हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे फिल होगा, 1s में। कहाँ पे फिल होगा, 1s। तो वो अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो हम लिखेंगे 1s1। क्या लिखेंगे, 1s। हाँ, बट अगर वो ज्यादा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, 1s1। बट एस शेल की लिमिट क्या है, मैक्सिमम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है? पी की लिमिट क्या है, 6, ठीक है? इसकी डी की सॉरी डी की लिमिट क्या है, 0 ना 3 ना 8 10। हाँ, एफ की लिमिट क्या है, 14। समझा? ये उसकी लिमिट है, अंडरस्टूड? ये उसकी लिमिट है। तो यहाँ पे अभी देखो, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन में कितने हैं, फर्स्ट शेल में कितने हैं, 1s2, फिर इसके बाद क्या आएगा, 2p, टू, अभी देखो 1s2 के बाद क्या आएगा, 2s आएगा। देखो पहले जो इसकी एनर्जी फिल होगी वो किसमें होगी, 1s में होगी, फिर 1s में से जाके किसमें होगी, 2s में होगी, फिर 2s में से 2p में होगी, समझा? फिर 2p में से 3s में होगी, फिर ये उल्टी जाके ऐसे 3p में होगी, देन 3p में, 4s में, फिर 3d में होगी, समझा? इस तरीके से ये वर्क करेगी। अभी देखो, पहले इसमें क्या आएगा, 1s2, क्योंकि पहले इसमें 2 है, समझा? अभी इसके क्या आएगा, फिर 2s2। अभी देखो इसमें क्या होगा, ये एस शेल में सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2, राइट? तो यहाँ पे ये 2 आएंगे, यहाँ पे भी 2 आए। अभी देखो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6, तो अभी बचे कितने, 2 + 2 कितने हुए, 4। हाँ, तो फिर बचे कितने, अभी 6 में से 4 गए, 2 गए, तो ये आएगा 2p2। समझ में आया, अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? जैसे अगर हम इसमें पीरियोडिक ब्लॉक में लिखते हैं तो कार्बन का ये कहाँ है, उसका ये क्या बोलते हैं, उसका पोजीशन कहाँ पे है, पी ब्लॉक में, बराबर? तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें आएगा, पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में कुछ भी आ सकता है। अरे देखो, पी ब्लॉक में और क्या होता है, इसके और सब चेन होते हैं, जैसे एक्स वाई जेड। ये आपको अभी है नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? एक्स वाई जेड, उसमें कैसे इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, दैट यू आर हैविंग इन हायर क्लासेस। समझ में आया? सो इसमें क्या होगा, फिर मैं आपको बता दूं, देखो पहले एक क्लॉकवाइज जाएगा, फिर एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, फिर एक क्लॉकवाइज जाएगा, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से 2 + 2 + 2 6 ये होते हैं। समझ में? अंडरस्टूड? तो ये इस तरीके से होता है। ओके, नाउ व्हाट वी आर हैविंग, ये आपको समझ में आया? आई होप एवरीवन इज अंडरस्टूड। ठीक है, पहले हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि KLMN ये शेल का नंबर है। शेल क्या है, स्पेसिफिक एक जोन है जिसमें हम लोग लोकेट करें, नियरेस्ट जोन। ऑर्बिट भी क्या है, एक जोन है, बट ऑर्बिट भी बड़ा है शेल से। जैसे मैंने बोला कोपरखैन एक पूरा एरिया है, तो वो हो गया ऑर्बिट। फिर शेल क्या होगी, सेक्टर 16 ये शेल हो गई। हमारा पूरा घर ही सेक्टर 16 है क्या, नहीं। हमारा पूरा घर ही सेक्टर 16 है क्या, नहीं। तो सेक्टर 16 ये एक शेल हो गई, समझा? और उसमें जो एग्जैक्ट मेरा घर है वो हो गया इलेक्ट्रॉन। अंडरस्टूड? तो इस तरीके से आपको याद रखना है। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।